शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा Okay, so good evening, everyone. Am I audible to all? Yes, sir. Okay, sir. Okay, so good evening, everyone, once again. So long time no see. I think it has been a very long time since we all have gathered here for any online program. So I, Taruna Rathod, welcome you all for the orientation program of B.Ed course 208, Reading and Reflecting on Text. So B.Ed course 208 is a part of our B.Ed second year syllabus. Its weightage is of 2 credits or 50 marks in our curriculum. So the resource person for today's program is our respected principal sir, Dr. Surendra Chandrakant Helkar sir. First of all, a very good evening to you, sir. And I welcome you all, you on behalf of all my batchmates for this orientation. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Sir has done MA in Hindi and Marathi. He is also MA'd and has cleared set exams. He has done MPhil and I think there is no need to introduction. No need to introduction. Sorry, to do so. Okay, okay. Go ahead. Sir has done MPhil and PhD in education from Savitribai Phule Pune University. Apart from Marathi, Hindi, and education, he has postgraduate degrees in sociology and social work also. He began his professional career as a lecturer in 2006 at Dr. M.A. Khan College of Education, Manchar. In 2011, he moved to Maid's MIT School of Education and Research. Presently, as we all know, he is working as the principal of Sant Gyaneshwar B.Ed College, Alandi. He achieved the Global Teacher Award in 2019. Also, the University of South America has awarded him the Diploma in Literature. Like this, there are numerous achievements of Sir's career which need, which need a separate program there for their appreciation. So, taking the program further, now I would like to request respected principal sir to please enlighten us with this ocean of knowledge and give us a lecture on the first session of orientation of course 208 on reading and its types and text and its characteristics. Over to you, sir. Thank you. Thank you so much for the nice introduction. Thank you. You will share your screen. Yeah. It's visible, sir? It's properly visible. Yeah. Yes, thank you. Yeah. सर नजर आ रही है स्क्रीन?
Yes, sir. Yeah, so thank you so much. आज मुझे बहुत खुशी है कि 208 रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट इस कोर्स पेपर के लिए शिंदे सर ने मुझे इस ओरिएंटेशन का फर्स्ट सेशन लेने के लिए कहा और आपसे बहुत दिन के बाद आपके सामने आने के लिए और आपसे बात करने के लिए एक छोटा सा मौका मुझे मिला. सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे. और आज मौका भी अच्छा है और दिन भी अच्छा है, इसलिए हमने आज से ये 208 का कोर्स स्टार्ट किया है. आप सब लोगों की इंटर्नशिप तो शुरू ही है, इसलिए थोड़ा सा लेट टाइम चूज करके हमने 4 to 5 ये टाइम सिलेक्ट किया और आपके सामने अब हम ये रीडिंग और रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट ये जो कोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है. एज अ टीचर रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ये कितना ज़रूरी है और इस कोर्स को बीएड में ही क्यों लाया है, ये जब आप ये पूरा वर्कआउट होगा, ये पूरे 4 सेशन एंड 2 एक्टिविटी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट ये एक टीचर के लिए कितना ज़रूरी है ये कोर्स और इस बात को समझना भी कितना ज़रूरी है. आज तो मेरा फर्स्ट ओरिएंटेशन है. मैं सिर्फ रीडिंग के बारे में आपको बताऊंगा, रिफ्लेक्शन की तरफ आज हम नहीं जाएंगे, सिर्फ रीडिंग की और आज हम जाएंगे. और आज हम जो जो देखेंगे उसमें है रीडिंग क्या है, रीडिंग के टाइप्स कौन कहे, टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या है, स्कीमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेक्स्ट. यही सिर्फ पांच पॉइंट में आपके सामने रखने वाला हूँ और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ये रीडिंग इम्पोर्टेंट है. एज यू नो स्टूडेंट की नॉट ओनली रीडर्स आर राइटर बट राइटर इज मस्ट बी अ रीडर. अगर आपको लिखना है तो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. इससे बेटर ये सेंटेंस आप सबने सुना है, इससे बेटर तो मैं कहूंगा कि अगर आपको पढ़ाना है, राइट, अगर आपको पढ़ाना है, अगर आपको टीच करना है तो आपको रीडर बनना तो बहुत ही जरूरी है. आपने ये सुना होगा लेकिन अभी जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पता है कि भगवान ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं, सो एक ही कान क्यों नहीं दिया, एक तो मुंह दिया है लेकिन कान दो क्यों दिए हैं. तो इसका मतलब ही ये है कि अगर आप कुछ बोलते हो, अगर आपको एक शब्द बोलना है, आपको एक वाक्य बोलना है तो उसके पहले आपको 2 बार सुनना होगा, मतलब डबल आपको सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है. अगर आप एक बात बोलने वाले हैं, आप एक शब्द अगर बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 बार सोचिएगा, 2 बार सुनिएगा और 2 बार पढ़िएगा. इसलिए मुझे लगता है कि भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है कि जब भी आप बोलिएगा, जब भी आप कुछ भी कीजिएगा तो उसके पहले आप सोचिएगा, 2 बार सोचिएगा, 2 बार पढ़िएगा, 2 बार सुनिएगा. इसलिए शायद 2 कान दिए गए हैं. सो डियर स्टूडेंट, ये रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट के लिए ये कुछ 4 ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किए हैं. जब ये हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सारे के सारे एक्टिविटीज एंड ओरिएंटेशन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पूरे के पूरे 4 जो भी ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल हो जाएंगे और आपको भी वो नजर आएंगे कि ये सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो चुके हैं. तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रीडिंग. यहाँ पे तो एक डेफिनेशन तो दी गई है कि रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम रिटन टेक्स्ट. तो आप क्या सोचते हैं कि रीडिंग क्या है? ओके, मीनिंग तो है, और आप क्या सोचते हैं कि रीडिंग क्या है? आप में से कोई बताना चाहेगा कि आपकी डेफिनेशन क्या है? अभी तो पिछले 15-16 साल से आप भी रीड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सुन रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि रीडिंग क्या है? Sir, may I say Madhulika here? या या Yeah, for me, reading, I think, is the first stage of education. Very good, very good, very nice, ma'am. Thank you so much for my next point. Thank you. Thank you. Anyone? Yeah, anyone? So may I? Yeah, please. So reading means gaining knowledge or gaining to take others' thought. Very good, very good. Nice. Anyone more? Yes.
Reading is going and learning as well. Yes, anyone want to share? No? Okay. So रीडिंग क्या है, और जैसे कि मैम ने बताया कि एजुकेशन स्टार्ट होने का फर्स्ट स्टेप रीडिंग है, या इट्स एब्सोल्युटली राइट। और दूसरों को समझना और क्या विचार है, थॉट्स क्या है, ये समझने के लिए हमें रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रीडिंग क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बी बॉडी। जिस तरह से हमारी बॉडी को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है वो अच्छी रहने के लिए, उसी तरह से माइंड अच्छा रहने के लिए माइंड की एक्सरसाइज अगर कुछ है तो फिर वो रीडिंग है। आपको हमेशा रीडिंग करते, अब जब 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 आप रीडिंग करते हैं तो माइंड को एक एक्सरसाइज मिलती है, माइंड फ्रेश होता रहता है रीडिंग की वजह से। माइंड को एक, हम जिसे खाद कहते हैं, एक ब्रेकफास्ट कहते हैं, उस तरह से वो माइंड को मिलता रहता है। जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं तो वो माइंड को मिलता रहता है। और जिस तरह से बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी होता है, उसी तरह से माइंड के लिए रीडिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता है कि अगर आपका माइंड फ्रेश है, अगर आपका माइंड स्टेबल है, तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इसलिए रीडिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कुछ वर्ड्स है, सिमिलर वर्ड्स है जो आप रीडिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। और आप अगर आप डिक्शनरी में रीडिंग का मीनिंग देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे वर्ड्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो वाई टू रीड, तो जैसे कि आप लोगों ने भी बताया है कि कुछ सीखने के लिए, हमें लर्न करने के लिए, रीड टू लर्न, रीड टू राइट, रीड टू स्पीक, रीड टू एनालाइज, रीड टू क्रिटिसाइज, रीड टू प्रीव्यू एंड रीड टू रिव्यू। सो रीड टू बिकम अ लिटरेट। एक साक्षर बनने के लिए, एक लिटरेट पर्सन बनने के लिए अगर कोई फर्स्ट स्टेप्स है, जैसे मैम ने बताया कि रीडिंग ये फर्स्ट स्टेप है एजुकेशन की तरफ जाने के लिए, लिटरेट होने के लिए। आप सबको पता है कि अगर आपको रीड करना आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब आप एजुकेट है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। उसकी अभी डेफिनेशन थोड़ी बदल चुकी है, लेकिन फर्स्ट डेफिनेशन यही थी हमारी कि अगर आपको पढ़ना आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं, आप ठीक तरह से पढ़ सकते हैं, तो आप एजुकेट बन चुके हो और आपको एजुकेट कहा जाता है। सो अगर आप साक्षर बनना चाहते हैं तो आपको रीडिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ सर्वे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये 2011 के हैं। अभी तक 2021 के सर्वे चल रहे हैं, इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सो मैं 2011 के कुछ यहाँ पे रिव्यू आपके सामने रख रहा हूँ। ये इंडिया के रिव्यू है कि लिटरेसी रेट क्या है, और लास्ट 10 ईयर्स का जो लास्ट का जो कॉलम है उसमें डिफरेंस बताया गया है कि किस तरह से वो अचीव हुआ है या फिर किस तरह से वो अपग्रेड हुआ है। तो आप सबको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो जिस स्टेट का है वो स्टेट केरला है। आई होप कि आप सबको ये पता ही है कि 100% की ओर केरला अब तो गया है, और शायद इस 2021 के लिटरेसी रेट में शायद वो 99 के अबव जाएगा उनका रेट। सो केरला ये सबसे टॉप मोस्ट इंडिया की जो कंट्री है जो लिटरेसी में टॉप मोस्ट है, और बिहार जो है वो सबसे लोएस्ट है। लेकिन आप लास्ट 10 ईयर्स का देखेंगे, मतलब 2001 के बाद उनका जो आंकड़ा है, जो डिफरेंस है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे कि 16% वो अपग्रेड हुआ है। 10 ईयर में 16% अपग्रेड हुआ है, और केरला 3.5%। एक्चुअली केरला है ही 93% के ऊपर। सो उतना अपग्रेड होने के लिए वो टाइम दिया है। और ये कहाँ से ये सारे के सारे जो भी अपग्रेडेड्स है या फिर लिटरेसी रेट है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो उनका रीडिंग, वो कितना रीड कर पाते हैं या फिर वो कितना पढ़ पाते हैं, उसके एनालाइज करके वो कितने स्टैंडर्ड तक उन्होंने पढ़ाई की है और वो कितना रीड कर पाते हैं, उसके स्टैंडर्ड से लेकर ही ये पूरा की पूरा एनालिसिस किया है। इसके लिए सबसे बेसिक जो टूल यूज किया है ये पूरा की पूरा एनालाइज करने के लिए, वो है रीडिंग का। या सो दैट्स व्हाई आई एम प्रेजेंट हियर। ये पूरा की पूरा मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस तरह से पूरे इंडिया का ये जो लिटरेसी का जो रेट है वो आपके सामने यहाँ पे आया है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूँ। तो लिटरेसी का जो फर्स्ट सेंटेंस है, द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु आर एबल टू रीड एंड राइट
सो रीड ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रीडिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, व्हाट इज देयर टू रीड। तो हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ये जो लिस्ट आपके सामने यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ये लिस्ट आप ऊपर से नीचे जाइए, नीचे से ऊपर मत आइएगा। ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि आप अगर लास्ट सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ई टेस्ट, आज आज हम फोकस कर रहे हैं ई टेस्ट के ऊपर। आज अगर कोई भी लिटरेट या फिर कोई भी स्कूल कॉलेज या फिर कोई भी आप इंसान ले या फिर पर्सन ले, तो वो लास्ट जिसके हाथ में मोबाइल है वो लास्ट ई टेस्ट की ओर ही जाता है। वो उसमें ही फर्स्ट लिखा है, देखिए व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के मैसेज तो हम रीड करते ही है, वो तो फर्स्ट ही है। और व्हाट्सएप की वजह से आज जो भी रीडिंग की कैपेसिटी जो भी है वो शायद मुझे लगता है कि व्हाट्सएप की वजह से आज चल रही है। वेबसाइट तो है ही हेल्पफुल, लेकिन व्हाट्सएप मेल्स और वेबसाइट की वजह से या फिर ई टेस्ट की वजह से आज थोड़ा जो भी रीडिंग हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप ऊपर भी देखिएगा, पूरी की पूरी लिस्ट है कि आप क्या क्या पढ़ पाते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। आप बुक्स से, नॉवेल से, पोएम से। आज तो मुझे लगता है कि नॉवेल्स, बुक्स, पोएम्स तो ये तो थोड़े आउटडेटेड ही हो चुके हैं। एक्चुअली मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब तक आप कोई भी बुक आप जब तक हाथ में लेके जब तक नहीं पढ़ते हैं, मैंने जानबूझ के वो पहला पोस्टर वहां पे डाला है स्टूडेंट का, मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा कि देखिए ना कि वो जिस तरह से वो लड़का है, वो बुक उसके पास है, फिजिकली बुक है एक्चुअली, और वो जो एंजॉय कर रहा है वो नजर आ रहा है इस पोस्टर में कि किस तरह से वो रीड कर रहा है, वो उसका आनंद ले पा रहा है। उस तरह से मुझे लगता है कि जब तक आप उस बुक को हाथ में जब तक नहीं लेते हैं, उसका टच आप अपने हाथ को नहीं करते हैं, और जब तक आप उस बुक को नहीं महसूस कर पाते हैं, तब तक आप इतनी अच्छी तरह से रीडिंग नहीं कर पाते, ऐसा मुझे लगता है। आई नो कि आप सब लोग व्हाट्सएप, लैपटॉप एंड बाकी जो भी गैजेट्स है उसका यूज करके ई टेस्ट के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा रीड करते होंगे। लेकिन आप एक बार कोई भी बुक आप एक बार ई टेस्ट के ऊपर आप देखिएगा, वेबसाइट हो उसके ऊपर या फिर मोबाइल हो उसके ऊपर आप पढ़िएगा, और वही बुक आप एक हार्ड कॉपी में, हार्ड बाइंड बुक के रूप में अगर आपके सामने हो, तो जब आप पढ़ेंगे तो हाउ मच इट्स डिफरेंट, आपको ये खुद समझ में आ जाएगा कि ये कुछ अलग है, या फिर जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास की रीड करने के लिए। और बुक्स हो, नॉवेल्स हो, पोएम्स हो, न्यूज़पेपर है, टेलीफोन डिक्शनरी, हाँ टेलीफोन डिक्शनरी भी आप पढ़ सकते हैं यार। आजकल वो नहीं मिलती है क्योंकि टेलीफोन ही आउटडेट हो गया है। शायद मोबाइल डिक्शनरी आएगी, लेकिन उसकी भी अभी तक तो इन्वेंशन नहीं हुआ है मोबाइल डिक्शनरी का, इतने सारे नंबर से, लेकिन मे भी फ्यूचर में हो जाएगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में आप एनईपी पढ़ सकते हैं। अभी तक तो मार्केट में थोड़ी ही बुक्स अवेलेबल है, लेकिन जल्दी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का एनईपी की बुक्स आपको मिल जाएगी। या फिर रिसर्च पेपर है, जर्नल्स है, मैगजीन है, प्रोजेक्ट है, या फिर रेफरेंस बुक है, फाइनेंशियल बुक्स है। ये आपके पास वैरायटी ऑफ बुक्स अवेलेबल है, आप ये भी सब पढ़ सकते हैं। ई टेक्स्ट तो एक पॉइंट है ही, और ये सारे के सारे ऊपर की जो भी सारी बातें है लिखी हुई है वो सारी की सारी आपको ई टेक्स्ट में भी मिल जाएगी। लेकिन डिफरेंट बिटवीन हार्ड बॉन्ड बुक एंड ई टेक्स्ट बुक तो वो तो होता ही है। और मुझे लगता है कि हमेशा कि जब तक आप खुद हाथ में बुक लेकर नहीं पढ़ते तब तक उसका कुछ यूज नहीं है। नो प्रॉब्लम। चलो, रीडिंग टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये दो ही टाइप रीडिंग के हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, लेकिन मेन ये दो टाइप है। एक है इंटेंसिव रीडिंग और दूसरा है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ऊपरी तौर पर देखा जाए तो आप जो एकेडमिक बुक का जो भी रीडिंग करते हैं, जो भी एकेडमिक है, आप एग्जाम के लिए जो भी पढ़ते हैं ना, जिस तरह से रीडिंग करते हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड, फ्रेज टू फ्रेज, आप एंटायर सब्जेक्ट मैटर को सामने रखते आप जब भी पढ़ते हैं, तो उसको इंटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। किसी कंसेप्ट को समझने के लिए वर्ड टू वर्ड रीडिंग उसको कहा जाता है। और आगे वो मैंने दिया है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग, रीडिंग फॉर जॉय, आपको एक जब आप एक्स्ट्रा जो भी कुछ रीडिंग करते हैं, एक्स्ट्रा बुक जो भी आप रीडिंग करते हैं, उसको इंटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। जैसे मुझे लगता है मैंने आगे, हाँ यस, आगे दिया है कि
इंटेंसिव जिसको फंक्शनल रीडिंग भी कहा जाता है। तो वर्ड टू वर्ड टाइप ऑफ रीडिंग, जब आप कोई एग्जाम के लिए बुक पढ़ते हैं या फिर किसी टॉपिक को समझने के लिए या फिर किसी कंसेप्ट को समझने के लिए जब आप रीडिंग करते हैं किसी बुक का, तो उसको जो रीडिंग कहा जाता है, तो उसको इंटेंसिव रीडिंग या फिर फंक्शनल रीडिंग कहते हैं। जो वर्ड टू वर्ड आप उसका मीनिंग समझ के स्लोली आप वो समझ कर फिर आगे जाते हैं, उसको इंटेंसिव या फिर फंक्शनल रीडिंग कहा जाता है। और दूसरा जो रीडिंग का टाइप है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग, जो रिएक्टिंग रीडिंग भी जिसको कहते हैं, और जिसको लाइट टाइप ऑफ रीडिंग भी कहा जाता है, जो एंजॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए और रिलैक्स होने के लिए जिस रीडिंग का हम यूज करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के लिए जब आप रिलैक्स होके आप कुछ पढ़ते हैं, जिसमें आपको कोई वर्ड आया नहीं आया या फिर कोई न्यू वर्ड है उसको आपने देखा नहीं देखा या फिर फास्टली रीडिंग किया आपने, तो भी इसमें नो प्रॉब्लम। एक्सटेंसिव रीडिंग में आपको ये चलता है कि आपने एक दो पेज छोड़ भी दिए उसमें, तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन आप एंजॉय करने के लिए आप वो पढ़ते हैं, उसका मीनिंग क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका उसमें से आपको आनंद कितना मिलता है वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दो टाइप के रीडिंग हम देखते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, ये दो टाइप के रीडिंग हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पर्पस, रीडिंग के दो टाइप होते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो हम किस तरह से पढ़ते ये है, और उसमें से ये दो टाइप है कि अकॉर्डिंग टू पर्पस हम रीडिंग के दो टाइप करते हैं। एक है स्कीमिंग। ओके, सो स्कीमिंग का मतलब क्या है, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल टेक्स्ट और फास्टर टाइप ऑफ रीडिंग बेस्ड ऑन द पर्पस, या फिर रैपिड सर्वे रीडिंग इसको कहा जाता है। एक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे पिछले इसमें वो एकेडमिक और एक्स्ट्रा बुक का एग्जांपल है, उसी तरह से यहाँ पे स्कीमिंग के लिए हम न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पहले तो आपको स्कीमिंग करते हैं, मतलब पूरा के पूरा न्यूज़पेपर पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उसको क्या कहते हैं, तो स्कीमिंग कहा जाता है। रैपिड सर्वे रीडिंग जिसको कहा जाता है। या फिर जब आपकी एग्जाम होती है, अभी तो ऑनलाइन ही एग्जाम है, लेकिन जब आपने क्लासरूम में बैठ के जब आप एग्जाम देते हैं, तो उस टाइम आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है, तो आप क्या करते हैं, स्कीमिंग करते हैं। फास्टली कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो सब सारा का सारा फास्टली लिखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्कीमिंग। ओके, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल टेक्स्ट क्या है, इसके लिए हम स्कीमिंग करते हैं। या फिर कोई भी हम न्यू बुक जब हम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्कीमिंग करते हैं। एक एक पेज हम नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली फास्टली हम देखते हैं कि क्या है, क्या कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन से टॉपिक या फिर सब टॉपिक उसमें दिए गए हैं, वो क्या है, स्कीमिंग है। ओके, तो रैपिड सर्वे ऑफ रीडिंग वो हम स्कीमिंग करते हैं। और स्कीमिंग के बाद आता है स्कैनिंग। ओके, तो स्कैनिंग में क्या होता है, तो वो हम एक एक वर्ड क्या है, एक एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम वो जानकारी देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि न्यूज़पेपर का, तो जब हम न्यूज़पेपर का स्कीमिंग करते हैं, मतलब पूरा के पूरा होल न्यूज़पेपर क्या है वो देखते हैं, और उसमें से जो भी न्यूज़ हमारे एजुकेशन की, फॉर एग्जांपल न्यूज़ हो कोई भी कि आज फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल है, तो अगर स्कूल के बारे में है या फिर आपको जो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिशियन के बारे में है या फिर एक्टर्स के बारे में है या फिर मूवी के बारे में, जो आपका इंटरेस्टिंग एरिया होगा, उसमें आप जाएंगे और आप फिर वो जो भी न्यूज आई है उसको आप ठीक तरह से पढ़ते हैं। फिर 1 to 1, सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड, आप जब आप वो न्यूज पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्कैनिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, different between scheming and scanning. Okay, तो scheming अंडरस्टैंडिंग है वो हम करते हैं, और स्कैनिंग में पर्टिकुलर वर्ड टू वर्ड हम समझते हैं। जो इंटेंसिव रीडिंग में होता है, मतलब वर्ड टू वर्ड समझना, उसका मीनिंग क्या है वो समझना, उसको एक नहीं तो दो बार पढ़ना, तो वो क्या है, स्कैनिंग होता है। ओके, उसे स्कैनिंग रीडिंग कहा जाता है। ये मेन पर्पसफुली अकॉर्डिंग टू पर्पस ये रीडिंग के दो टाइप है। एक है स्कीमिंग, ओके, होल
जो भी टेक्स्ट है उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, और दूसरा है स्कैनिंग, वर्ड टू वर्ड इंफॉर्मेशन के लिए हम ये इसको स्कैनिंग को यूज करते हैं। ठीक है, मुझे तो मतलब ये तो है ही। हम आगे टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये रीडिंग एज अ टीचर हमें क्यों जरूरी है, राइट? ये भी आपके सामने क्वेश्चन होगा कि एज ए टीचर रीडिंग क्यों जरूरी है, किस लिए हमें रीडिंग करना चाहिए। तो जब भी आप अपने सब्जेक्ट में, आपको पता है कि जब भी आप स्कूल में जाते हैं और कोई भी टॉपिक आप पढ़ाते हैं, तो जब भी आप टॉपिक पढ़ाते हैं तो उस टाइम स्टूडेंट को जो भी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है वो मैटर सुनने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। आज जो भी हम एक कोई भी इंग्लिश का या फिर हिंदी का या फिर मराठी का कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ाते हैं, कंटेंट अगर हम पढ़ाते हैं, तो उस टाइम अगर आपने वही कंटेंट अगर रीड करके स्टूडेंट को बताने की कोशिश की तो आपको कोई भी देखेगा नहीं आपकी तरफ, या फिर आप क्या पढ़ा रहे हैं ये कोई भी सुनेगा नहीं। उस टॉपिक के रिलेटेड जब आप कोई एक्स्ट्रा नॉलेज देने की बात करेंगे, जब आप कोई एक्स्ट्रा स्टोरी बताने की आप बात करेंगे, जब आपको उसका एक्सटेंशन आप अगर बता देंगे उस टॉपिक का या फिर उस कंटेंट का, तो स्टूडेंट आपके ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो स्टूडेंट आपकी ओर फोकस करते हैं, तो स्टूडेंट शांत बैठते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लाइट लैंग्वेज में हम कहेंगे, तो आपके ऊपर फोकस करने के लिए, आपको उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए मेन थिंग क्या है, तो आपको वो रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट रीडिंग आप कुछ नहीं कर पाते एज अ टीचर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको एक लेक्चर लेना है 30 मिनट्स का, अगर आपको लेक्चर लेना है तो उसके लिए आपको 3 आवर्स तो मिनिमम स्टडी करना होता है। स्टडी करना होता है मतलब क्या होता है, रीडिंग करना होता है। या स्टडी में और रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इसलिए हर एक टीचर के लिए तो रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वो, मुझे लगता है कि अगर हम 3 आवर्स या फिर 4 आवर्स अगर हम टीच करते हैं या फिर लेक्चर लेते हैं, तो आपको 8 आवर आपको स्टडी करना होता है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिफरेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आज सीनियर कॉलेज हो या फिर हमारे यहाँ पे हो, हम 3 आवर्स या फिर 3.5 आवर्स के एक्चुअल वॉच टाइम से अगर हम 3.5 आवर्स अगर हम लेक्चर लेते हैं, 3 घंटे का अगर लेक्चर लेते हैं, मतलब आपके हिसाब से 6 लेक्चर, राइट, 30 मिनट्स के अगर हम देखते हैं तो 6 लेक्चर अगर आप लेते हैं तो ये आपका वर्कलोड कंप्लीट हो जाता है डे का। आपका वर्किंग आवर्स होता है 6 आवर्स का, लेकिन आपका अगर आप एक्चुअल देखेंगे घड़ी के आप टीच जो कर रहे हैं वो सिर्फ 3 आवर्स का है, लेकिन 6 आवर्स इसलिए है कि आपको नेक्स्ट 3 आवर्स आपको रीड करना है। आप जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको रीड करना है। आप देखते होंगे कि पूरी इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में, या फिर आप कोई भी इंडस्ट्री ले, उसमें आपको 12 आवर्स की आपको सर्विस दिखाई देंगी, 8 आवर्स की सर्विस दिखाई देंगी। आपको किसी भी MIDC या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप देखिएगा कि उनको 8 आवर्स की उनकी वर्किंग लोड होती है। एक दिन का अगर वर्क देखा जाए तो 8 आवर्स का होता है। कहीं पे कहीं IT के यहाँ पे 12 आवर का वर्किंग लोड होता है 1 डे के लिए, पर डे के लिए। लेकिन जब आप किसी स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में आप देखिएगा कि वर्किंग लोड सिर्फ 6 आवर्स का होता है। कहीं किसी स्कूल में 8 आवर का भी है, वो इतना ऑथेंटिकली नहीं है, लेकिन 6 आवर का ही कंपलसरी स्कूल होता है। और उसमें भी टीचर जो है उसको 3 आवर से टीचिंग दिया जाता है, मतलब 6 क्लासेस उसको दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। आपके यहाँ पे क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल 6 लेक्चर्स में 3 आवर्स ही आपको पढ़ाना है। मतलब दिन में आपको 3 आवर से टीच करना है, लेकिन आपका जो वर्कलोड है वो वर्कलोड 12 आवर्स का है। मतलब जब आप 12 आवर्स देते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो आप 3 आवर्स पढ़ा सकते हैं, राइट? तो एज अ टीचर मुझे लगता है कि 3 आवर्स के लिए 18 आवर्स या फिर 20 आवर्स भी कम पड़ते हैं। लेकिन आपको सिखाने के लिए अगर आपको 30 मिनट्स का अगर लेक्चर लेना है या फिर कोई भी टॉपिक टीच करना है, तो उसके पीछे आपकी 2-3 घंटे की मेहनत उसके पीछे जुड़ी होती है, और तब आप वो प्रॉपर तरीके से पढ़ा पाते हैं। इसलिए एज अ टीचर्स आपको रीडिंग ये कंपलसरी है। विदाउट रीडिंग आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और एक आइडियल टीचर बनने के लिए, एक गुड टीचर बनने के लिए आपको रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और क्या क्या बातें हैं। तो फिर अगर आपको एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है और आपका रीडिंग अच्छा है, आपके पास स्टोरीज अच्छी है, तो आप एक्स्ट्रा लेक्चर ले पाते हैं। जब आप अच्छी तरह से रीड कर पाते हैं, बहुत सारा रीडिंग आपके पास अवेलेबल होता है, जब आप बहुत सारा रीडिंग करते हैं तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कहीं कभी भी और किसी भी समय और कहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज दे पाते हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे पाते हैं ड्यू टू दिस रीडिंग। जब भी आप प्रॉपर रीडिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कितना ज़्यादा रीड करते हैं। ये आगे का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस टेक्स्ट के और किस तरह से एक रीडर डेवलप होता है। अब हम एजुकेशन की ओर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह से और एक रीडर को डेवलप करती है और किस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, इसके ऊपर देखिए। ये देखिए, पहला जो है स्टेज वो है इमर्जेंट रीडर का। इमर्जेंट रीडर किसे कहा जाता है? यहाँ पे आप एक पोस्टर आप देख रहे हैं कि जहाँ पे टीचर ये है या फिर माँ है, उस स्टूडेंट को हेल्प कर रही है कि वो रीड करने के लिए, तो उसको इमर्जेंट रीडर कहा जाता है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक सारे के सारे दिए गए हैं। जब आप केजी की या फिर फर्स्ट या फिर सेकंड स्टैंडर्ड की आप अगर बुक लेंगे तो उसमें आपको जो भी टेक्स्ट या फिर जो भी उसमें कंटेंट होता है वो इस टाइप का होता है, जैसे जो आप सामने अभी पढ़ रहे हैं कि एक या फिर दो ही वर्ड उसमें दिए जाते हैं। बहुत लार्ज साइज फॉन्ट की जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है। इजी पॉइंट्स वहाँ पे होते हैं कि जिस तरह से स्टूडेंट को रीडिंग की हैबिट उनको लगे और वो ठीक तरह से रीड कर पाए। उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। ये जो रीडर होते हैं, इमर्जेंट रीडर होते हैं, उनको किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई उनको हेल्प करे, माँ हो या फिर पिताजी हो या फिर वो टीचर हो, वो उसको इस रीडिंग में हेल्प करती है। और ये जो स्टेज है वो है केजी या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड या फिर मैक्सिमम सेकेंड स्टैंडर्ड की जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए जो रीडिंग किया जाता है वो इमर्जेंट रीडर होते हैं और उनके ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक है। अभी हम आगे आगे की स्टेप्स क्या है और आगे के रीडर कौन है इसके बारे में देखेंगे। लेकिन आप एक बात देखिएगा कि आज जो NEP 2020 आया है, वो सारा का सारा NEP 2020 का अगर आप बेस देखेंगे तो ये रीडिंग स्किल का है। जब हम आगे आगे चलते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा के पूरा रीडिंग स्किल जिस तरह से डेवलप होते जाता है, उस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है, उस तरह से बुक्स का साइज और बुक्स का कंटेंट ये बढ़ते किस तरह से चला जाता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम किस तरह से इस एक छोटे से पॉइंट के ऊपर चलती है, ये भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। बिगिनिंग रीडर, तो बिगिनिंग रीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये आप सामने देख पा रहे हैं कि देखिएगा कि लार्ज सेंटेंस, थोड़े थोड़े अभी सेंटेंस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, सेंटेंस बढ़ जाते हैं, वर्ड की साइज बढ़ जाती है। और ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये सारा का सारा देखिए, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनको मैच हो रहे हैं। वो उनकी जो बुक है वो जिस तरह से पढ़ते हैं उनके लिए ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो मैच होते हैं। कि थोड़ा सा लार्ज रेंज अभी उनका होता है, थोड़े टेंस सेंटेंस में उनको टेंस आपको नजर आएंगे। उनकी वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नजर आएगा आपको उनमें। और थ्री फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड के जो भी रीडर स्टूडेंट होते हैं उनकी जो रीडिंग होती है वो इस तरह से वो बिगिनिंग रीडर उनको कहा जाता है और वो रीड करते हैं। यहाँ पे पिक्चर जो है वो पिक्चर की साइज थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है और फॉन्ट साइज भी थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। और ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट में हमें जो भी रीडर वो जो रीड करते हैं उनको बिगिनिंग रीडर कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक रिसर्च में आपको बता देता हूँ कि बिगिनिंग रीडर की जो क्वालिफिकेशन है, मतलब क्राइटेरिया, इवेल्यूशन का क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देता हूँ रीडिंग का। वो है 32 वर्ड्स इन अ मिनट। ओके, 32 वर्ड्स अगर आप एक मिनट में प्रॉपर तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आप एज अ बिगिनिंग रीडर बन जाते हैं। हर एक रीडर के लिए रिसर्च थ्रू उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उनकी डिसाइडेड है। तो यहाँ पे मैंने एक रिसर्च पढ़ा था इसलिए वो मुझे अभी याद आया, तो मैंने आपको बता दिया कि
कोई भी स्टूडेंट आप भी एक्सपीरियंस ले लीजिएगा कि 3rd या फिर 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ले लीजिएगा। जैसे कि हम टाइपिंग में यूज करते हैं ना कि आपको पता होगा कि 40 वर्ड्स अगर आप 1 मिनट में टाइप कर पाते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो तो 40 हो गई, राइट। अगर आप 50 वर्ड्स टाइप करते हैं तो आपकी स्पीड 50 होती है। उसी तरह से अगर आप 1 मिनट में 32 वर्ड्स आप प्रॉपर तरीके से वो पढ़ पाते हैं, रीड कर पाते हैं, तो आपकी वो 32 की स्पीड होगी, वो अच्छी स्पीड मानी जाती है। प्रॉपर मतलब पास, जिसको हम पास क्लास कहते हैं, वो पास क्लास की वो 32 है और टाइपिंग की 40 है, 40 वर्ड्स है और रीडिंग की 32 वर्ड्स कहा जाता है, लेकिन वो एज के हिसाब से है। अभी जो मैंने आपको बताया वो 3rd स्टैंडर्ड की है। 3rd स्टैंडर्ड का जो रिसर्च मैंने पढ़ा था उसमें वो दिया गया था कि 32 ये है। ये तो आप कहेंगे कि किसी भी एज ग्रुप के लिए वो चलेगा क्या, तो नहीं। 3rd स्टैंडर्ड के लिए बिगिनिंग रीडर के लिए वो रिसर्च था। तो 32 वर्ड्स इन अ मिनट वो उनका क्राइटेरिया दिया गया था उस रिसर्चर ने। चलो नेक्स्ट हम चले जाते हैं, तो वो है प्रोग्रेसिंग रीडर। तो अब थोड़ा सा अपग्रेड हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 5th to 8th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट होते हैं वो जिस तरह से रीडिंग करते हैं या फिर जिस तरह से उनके टेक्स्ट बुक्स बनाए गए हैं, वो सारे के सारे टेक्स्ट बुक इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। जैसे कि थोड़ा सा भी फॉन्ट साइज उनकी और ज़्यादा कम हो जाती है, और कंटेंट साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डायलॉग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कंसेप्ट में डेप्थ थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़े थोड़े सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और अब देखिए अपग्रेड हो रहा है। ये कौन से रीडर है, तो प्रोग्रेसिंग रीडर उनको कहा जाता है, और ये अपग्रेड आगे आगे अपग्रेड होता चला जाता है। अब देखिए कि स्टेज 4 की तरफ हम जा रहे हैं, वो ट्रांसलेशन रीडर उनको कहा जाता है। और ये 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो होते हैं वो इस टाइप के रीडर होते हैं, जो आप अभी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सामने देख रहे हैं कि यहाँ से पिक्चर पूरी तरह से चली जाती है, कलर्स इस रीडिंग में चले जाते हैं, जो भी वर्ड की साइज होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, और कंसेप्ट जो है वो बहुत ही बड़े बड़े कंसेप्ट हो जाते हैं। और उनको उस जो भी शब्द है, जो भी वर्ड है, उसका वो एनालाइज करने की सोचते हैं। जो भी स्टोरी है उसके एपिसोड्स होते हैं 1 2 3, वोकेबलरी ज़्यादा बढ़ने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सिमिलर वर्ड उनको वहाँ पे दिए जाते हैं। ये इस टाइप के रीडर आपको यहाँ पे स्टेज 4 में दिखाई देंगे। 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टाइप के रीडर होते हैं। टेक्निकल वोकेबलरी उनको ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है। ओके, आई होप कि आप सब लोग सुन रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट। Yes, sir. सो थैंक यू। चलो, मुझे लगा कि आप अच्छे लिसनर है ही, लेकिन हम रीडर की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको चेक कर दिया। ओके, चलो नो प्रॉब्लम। चलो इंडिपेंडेंट रीडर की और अब हम चले जाते हैं कि किसे इंडिपेंडेंट रीडर कहा जाता है। ये 5th नंबर की स्टेप है। आप देखिएगा कि जिस तरह से स्टेज बढ़ रहे हैं उस तरह से एजुकेशन के क्लासेस भी बढ़ रहे हैं। आपको ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह से रीडर के स्टेज बढ़ रहे हैं उस तरह से एजुकेशन के, मतलब लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी, इस तरह से वो बढ़ता चला जाता है। वो स्टेजेस जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। सिर्फ एक रीडिंग इस पॉइंट के ऊपर ही ये पूरा के पूरा आपको ये नजर आएगा। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट रीडर किन्हें कहा जाता है। तो 11th और 12th स्टैंडर्ड, जिसको हम हायर सेकेंडरी कहते हैं, जिसको हम हायर सेकेंडरी कहते हैं, वो जो रीडर होते हैं, वो जो जिस तरह से पढ़ते हैं और जो जिस तरह से बुक उनके हाथ में हम देते हैं, वो जो सारे के सारे बुक है वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनकी जो रीडिंग होती है वो इस लेवल की रीडिंग होती है। उनकी फॉन्ट साइज और वर्ड्स में जो भी डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और हाई इंटरेस्ट लेवल उनके आपको उसमें नज़र आएगा। लैंग्वेज का पैटर्न उसमें चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। और ये जो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको उस रीडर के इसमें आपको सारे के सारे नज़र आ जाएंगे। और सिमिलरली 11th और 12th के स्टूडेंट्स में ये सारे के सारे हमें देखते हैं जो रीड करते हैं उस तरह से। इवॉल्विंग रीडर, अब ये देखिएगा कि ये डिग्री लेवल या फिर पीजी लेवल के जो भी स्टूडेंट्स या फिर
जो हम मैच्योर, जिसको 18 प्लस जो भी है, जिनका एज 18 प्लस हो चुका है, उनको हम इस कैटेगरी में हम ले सकते हैं कि अब यहाँ पे वो नॉवेल पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, जेम्स बॉन्ड हो या फिर आपको भी पता होगा कि बहुत सारी नॉवेल्स आज मार्केट में अवेलेबल है, बुक्स के सीरीज आज मार्केट्स में अवेलेबल है, तो वो जहाँ पे पढ़ी जाती है उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। तो ये जो लेवल है वो इस तरह के जो भी रीडर्स है, इवॉल्विंग रीडर जिसको हम कहते हैं, वो उनके एक सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आएंगे। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली आगे चलता हूँ। मुझे और एक बात आपको बतानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। ये सारे के सारे आपको ये पीपीटी मुझे लगता है शिंदे सर आपको शेयर कर देंगे, और इसलिए इतना ज़्यादा हम डीपली नहीं जाते हैं। सिर्फ हमें स्टेजेस किस तरह से बढ़ते जाते हैं, रीडर की जो स्टेजेस है वही स्टेजेस एजुकेशन में किस तरह से लाई गई है, और खास करके एनईपी में ये सारा का सारा आपको नजर आएगा कि उन्होंने वो पूरा के पूरा फोकस, एनईपी का फोकस का बेस भी रीडिंग का ही है, और वो किस तरह से स्टेजेस अपग्रेड होते हैं ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। लास्ट में जो है वो है जिसको हम एडवांस रीडर हम कहते हैं। 7 और 8 जो है वो पीजी लेवल के स्टूडेंट होते हैं। वो आप और मैं हो पीएचडी के स्टूडेंट है, एमफिल के स्टूडेंट है। आप और मैं जिस तरह से जिस रीडिंग का यूज करते हैं उनको एडवांस रीडर या फिर मैच्योरिंग रीडर उनको कहा जाता है, और वो इस टाइप के रीडर होते हैं। और ये सारे के सारे 7 to 8 जो भी स्टेजेस है वो पूरे के पूरे स्टेजेस एजुकेशन में रिफ्लेक्ट होते हुए मुझे नजर आते हैं। मतलब जिस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाते हैं एक रीडर के, उसी तरह से एजुकेशन सिस्टम भी आगे आगे बढ़ती जाती है। इस आपको भी नजर आएगा कि इमर्जेंट रीडर्स टू एडवांस रीडर, जिस तरह से हम रीडिंग की कैपेसिटी बढ़ाते हैं उस तरह से एजुकेशन सिस्टम का भी एक एक स्टेज आगे 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 बढ़ते चला जाता है। स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, और इसी के ऊपर ही पूरी की पूरी एनईपी की जो आज की न्यू जो भी जिसको हम आकृतिबंध कहते हैं, जो 5+3+3+4 जो भी अभी न्यू आया है एजुकेशन सिस्टम, तो ये पूरा के पूरा इस मुझे लगता है कि इस रीडिंग स्किल के ऊपर ही डिपेंड है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग के ही ऊपर डिपेंड है। जब भी मैंने ये रीडिंग की बात पढ़ी तो मुझे एनईपी के न्यू जो फाउंडेशन है, हम कहते हैं ना कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी, पीजी लेवल, यूजी लेवल, तो ये लेवल इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और जब भी आप ये पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आपको एक एक स्टेज किस तरह से हम ऊपर ऊपर चले जाते हैं, ये पढ़ना और ये समझना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एज अ टीचर ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। और एक थोड़ी सी बात मैं एडिशनल यहाँ पे अभी हमारे है पास 5-1 मिनट है हमारे पास, तो डिस्कशन से पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से हाउ टू रीड अ बुक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज अ टीचर ये बात आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ स्टूडेंट आपको स्टूडेंट को बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से पढ़ा जाता है, कि क्या क्या टेक्निक्स होती है, बुक पढ़ने के टेक्निक क्या क्या है। मैं आपके पास मेरी जो भी 2-3 टेक्निक है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि वो क्या क्या टेक्निक होती है, या फिर किस तरह आपके भी पास कोई ना कोई तो टेक्निक होती है होगी, और आप भी स्टूडेंट को बताते होंगे कि किस टेक्निक से आपको पढ़ना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि आगे के लेक्चर में भी वो आपको दिए जाएंगे टेक्निक की किस तरह से रीड करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक 2-3 टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि आप वो अपने स्टूडेंट को बताइएगा कि रीड करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि रीडिंग, विदाउट रीडिंग आप कुछ नहीं कर पाते। कहीं पे भी आप एक वर्ड बात नहीं कर पाते हैं विदाउट रीडिंग। आपको अगर क्लास में खड़ा रहना है तो रीडिंग ज़रूरी है, आपको मार्केट में जाना है तो रीडिंग ज़रूरी है, आपको गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना है तो रीडिंग ज़रूरी है, आपको टीचर के साथ बात करनी है तो रीडिंग ज़रूरी है, आपको स्टूडेंट के साथ बात करनी है तो रीडिंग ज़रूरी है, आपको किसी फ्रेंड के साथ बात करनी है तो भी रीडिंग ज़रूरी है। चाहिए वो रीडिंग कोई भी हो, किसी बुक की हो, नॉवेल की हो, व्हाट्सएप की मैसेजेस की हो, या फिर कोई जीआर हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो, या फिर कोई पॉलिसी हो,
विदाउट रीडिंग आप कहीं पे भी खड़े नहीं हो पाते हैं, और आप अपना जो भी थिंकिंग पावर है, आप अपना जो भी माइंड सेट है, आप वो बना नहीं पाते हैं जब तक आप रीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते। सो मैं आपको एक 5-6 टेक्निक जो मैं यूज करता हूँ वो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, और वो आप अपने स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा और उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा। कि मुझे लगता है कि आप आपको ये भी बात बताओगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भी बर्थ डेट है वो हम रीडिंग डे मनाते हैं, वाचन प्रेरणा दिन जिसको हम कहते हैं। तो वो स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए हम वो दिन मनाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो अभी हाल ही में हमने वो मनाना शुरू किया, जब एपीजे साहब गए तो उसके बाद हमने वो मनाना शुरू किया। एक्चुअली रीडिंग ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और मैंने जैसे पहले कहा था कि रीडिंग आप व्हाट्सएप के इसमें या फिर ई टेक्स्ट का रीडिंग ज़्यादा मत कीजिएगा, लेकिन आप एक्चुअल बुक आप जब हाथ में लेते हैं और जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसका जो फील है, उसका जो इंटरेस्ट है, या फिर उसकी जो अटैचमेंट है, या अटैचमेंट ये वर्ड बहुत अच्छा है, जो अटैचमेंट है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जब तक नहीं आती है तब तक वो आपका दोस्त नहीं बनता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो बुक आपके दोस्त है। और बुक ये ऐसा दोस्त है कि जो कभी भी हम पे नाराज नहीं होता है। हम उसके ऊपर नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो जो दोस्त है वो हम पे कभी भी नाराज नहीं होता है, उसको कभी भी मनाना नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, वो हमें हमेशा अच्छा ही सिखाता है। बुक ये जो दोस्त है वो हमेशा अच्छा ही सिखाता है। बाकी दोस्त आई डोंट नो, लेकिन हर एक का बुक ये दोस्त होना ही चाहिए। और एज ए टीचर आपके पास बुक की लाइब्रेरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट लाइब्रेरी आप कुछ नहीं कर पाते। आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो अभी मोबाइल है, लैपटॉप है, तो क्या ज़रूरत है लाइब्रेरी की, क्या ज़रूरत है हार्ड बॉन्ड बुक की, क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं वही आपको कहूँगा कि आप एक बार कोई बुक आप हाथ में लेके पढ़िएगा और वो ई टेक्स्ट के रूप में पढ़िएगा, आपको डिफरेंट पता चल जाएगी। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी आपको सबको करूँगा कि हमारी, ये मेरा बड़प्पन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी सारे के सारे बीएड कॉलेजेस है पुणे यूनिवर्सिटी में, अराउंड 91-92 एजुकेशन कॉलेजेस है, उसमें से नॉन ग्रांट के जो भी कॉलेजेस है अराउंड 80-82 कॉलेजेस नॉन ग्रांट है, 10 कॉलेजेस ही ग्रांटेड है। ग्रांटेड कॉलेज की बात हम नहीं करते, उनकी लाइब्रेरी तो है ही अच्छी, लेकिन नॉन ग्रांटेड कॉलेजेस में जो भी लाइब्रेरीज अवेलेबल है एजुकेशन की, उसमें से हमारी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो बेस्ट लाइब्रेरी है। आपने देखा होगा कि 10,000 स्क्वायर फुट की लाइब्रेरी है हमारी, जो मतलब अलंदी जैसे एरिया में, थोड़ा सा रूरल एरिया है, उस एरिया में 10,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी होना ये बहुत बड़ी बात है, विद रीडिंग हॉल। मुझे नहीं लगता कि आपको आपको तो टाइम नहीं मिलता है, आप तो कोई कोई स्टूडेंट संडे या फिर सैटरडे ही आते हैं, लेकिन आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका यूज़ कीजिएगा, हमारे लाइब्रेरी का यूज़ कीजिएगा, हमारा रीडिंग हॉल का यूज़ कीजिएगा, और प्रॉपर बुक का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप बुक इशू करके लेके जाके भी आप रीड कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग कीजिएगा। आप, हमारे पास बहुत सारे बुक है, टेक्स्ट बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, उसका आप यूज़ कीजिएगा और रीडिंग प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। और एक प्लेज आप आज लीजिएगा कि मैं मिनिमम 5 मिनट्स, हाँ मिनिमम 5 मिनट्स तो मैं रीड करूंगा। एक्चुअली 15 मिनट्स रीड करना चाहिए हर दिन, मिनिमम 15 मिनट्स। आपके पास अगर टाइम है तो 1 आवर्स भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 15 मिनट्स तो रीड करना ही चाहिए। और वो भी रीडिंग का जो टाइम है, मैं आपको वो टेक्निक में मैं बताऊंगा कि सुबह का अगर टाइम आप रीड करते हैं तो वो आपके दिमाग के लिए वो अच्छा रहता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, और एक्सरसाइज आप शाम में नहीं करते हैं या फिर दोपहर में नहीं करते। आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो फिर आपको सुबह सुबह अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। सेम वही थिंग है माइंड की एक्सरसाइज की। अगर आपने सुबह सुबह मतलब 4 o'clock 5 o'clock या फिर 6 o'clock तक अगर आप रीडिंग करते हैं, मतलब उस समय अगर आप रीडिंग करते हैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर या फिर 1 आवर अगर आप रीडिंग करते हैं, तो वो आपके माइंड के लिए वो सबसे बेस्ट रीडिंग होता है। तो बेस्ट टाइम होता है, तो वो भी आप यूज़ कीजिएगा। मैं एक 2-3 टेक्निक में आपको मैं बताना चाहूँगा कि
क्या क्या है, वो 5 मिनट है फिर भी हमारे पास। तो एक है तो पहली जो मुझे लगता है कि मेरी जो एक टेक्निक है उसमें से पहली जो है वो स्टडी अ बुक। आप देखिए कि नॉट ओनली रीड, मतलब रीड अ बुक नहीं, तो स्टडी अ बुक, मतलब जो भी आप रीड करेंगे तो एज अ स्टडी के हिसाब से भी आप रीड कीजिएगा। और उसके भी मैं आगे जाके मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप कुछ रीड करते हैं, कोई भी बुक हो, नॉवेल हो, या फिर जो भी न्यूज़ हो, या फिर कुछ भी हो, आप टीच की तरह से रीड कीजिएगा। जैसे कि मुझे दूसरों को ये सिखाना है, उस तरह से अगर आप रीड करते हैं, कोई भी बुक हो या फिर कुछ भी हो, तो आपको वो ज़्यादा समझ में आती है। आप भी वो शायद आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा, अभी आप भी टीचर है, कि जब हम कोई बुक हम पढ़ते हैं, तो अगर सिर्फ मेरे लिए मैं पढ़ता हूँ तो वो इतना ज़्यादा मैं समझ नहीं पाता हूँ। सिर्फ एग्जाम के लिए मैं पढ़ता हूँ तो वो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे टीच करना है, किसी को ये बात बतानी है, और तब मैं अगर किसी बुक को पढ़ता हूँ ना, तो वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझकर, जानकर, मैं फिर उसको वो अंडरस्टैंड करके मैं फिर वो बुक पढ़ता हूँ। तो स्टडी अ बुक, ये मैं आपको बताना चाहूँगी, ये एक मेरी पहली टेक्निक है, स्टडी अ बुक। दूसरा जो है तो सिलेक्ट एन इजी अ बुक, मतलब इंटरेस्टिंग या फिर हेल्पफुल। आप कोई भी बुक पढ़ने की अगर कोशिश कर, आप स्टूडेंट को भी बताइए या फिर आप भी देखिएगा कि अगर आपको कोई भी बुक पढ़ना है, या फिर आपको लगता है कि या आज से मैं 15 मिनट्स तो कुछ ना कुछ तो रीड करूंगी, तो आप कोई भी बुक है वो इजी बुक ही सिलेक्ट कीजिए, कोई भी हार्ड बुक बिल्कुल भी सिलेक्ट मत कीजिएगा। अगर आपको स्टडी भी करना है तो भी 201, 202, 203, 204, 205 में से जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, या फिर जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है, जो आपको अच्छा लगता है, उस पेपर को सबसे पहले सिलेक्ट करके और सबसे पहले उसकी स्टडी करना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, हार्ड से स्टार्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, इजी जो भी पेपर है उससे स्टार्ट कीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इंटरेस्टिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो हैबिट है या फिर आपकी जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर चलती रहेगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो खत्म नहीं होगी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। इसलिए इजी और इंटरेस्टिंग आप बुक आप सिलेक्ट कीजिएगा और फिर रीड कीजिएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है, रीड इन द मॉर्निंग, तो अगर आप मॉर्निंग में आप रीड करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके माइंड के लिए, आपको सोचने के लिए, आपके दिन भर एक्टिविटी के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। रीड विद पेंसिल, जब भी आप रीड करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट को भी ये बात बताइए कि जब भी आप रीड करना चाहते हैं तो उंगली रख के आप रीड मत कीजिएगा, आप पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, फिर पेन का तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि बुक खराब हो जाता है और बुक हमारे फ्रेंड है। सो आप पेंसिल का यूज़ प्रॉपर आपको करना होगा, जब भी आप रीड करें तो पेंसिल का यूज़ आप कीजिएगा। रीड लाउडली, मैं तो ये आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी रीड कर रहे हो तो थोड़ा सा लाउडली रीडिंग करना चाहिए, मन ही मन में, मतलब अगर प्लेस नहीं है, प्रॉपर प्लेस नहीं है, तो मैं तो ये भी आपको कहना चाहूँगा कि क्रिएट एम्बियंस, प्रॉपर वो इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो एम्बियंस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो जो रीड करने के लिए। जो मैंने फर्स्ट पिक्चर डाली थी ना, देखिए ना वो लड़का पूरे के पूरे पीछे जो बैकग्राउंड था वो पूरा ग्रीनरी का था और वो अकेला ही था, और वो उस तरह से अभी नॉट पॉसिबल, आई नो कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपकी बेडरूम हो या फिर आपका लिविंग रूम हो या फिर आपका जो कॉर्नर हो, वो जो आपका स्पेशली कॉर्नर हो, तो वहां पे बैठ के ही आप प्रॉपर तरीके से वो रीड करना चाहिए। और हो सके तो थोड़ा सा लाउडली अगर आप रीड करेंगे तो वो आपको समझने के लिए, वो टॉपिक समझने के लिए वो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। और डू नॉट स्किप अ वर्ड, मैं आपको ये टेक्निक का लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि डू नॉट स्किप अ वर्ड, कि जो भी वर्ड है, न्यू वर्ड है या फिर जो भी वर्ड आता है, हार्ड वर्ड तो नहीं कहते हैं हम, न्यू वर्ड ही कहते हैं सबको। तो जो भी न्यू वर्ड है उसको समझकर, उसके लिए आप रेफरेंस बुक यूज करके फिर आगे जाइएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा, उस वर्ड को स्किप मत कीजिएगा। तो यही एक 5-6 टेक्निक है जो मुझे आपको बतानी थी, जो आप स्टूडेंट को बताइएगा। और रीडिंग की जो हैबिट है वो या रीडिंग की जो हैबिट है वो आगे भी पास ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एज अ टीचर रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है ये आप तो समझते ही है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन हम फॉलो कितना करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। रीडिंग की टेक्निक है हो या फिर रीडिंग की हैबिट्स हो या फिर रीडिंग में जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और ई रीडिंग की बजाय, मतलब
की रीडिंग की बजाय हार्ड बाउंड जो बुक है उसको हाथ में पकड़ कर जब हम रीड करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही अलग होता है और वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे लगता है कि रीडिंग की जो भी कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। सो डियर स्टूडेंट, रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन में जो पहला टॉपिक है रीडिंग का, तो उसमें मुझे लगता है कि ये सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पीपीटी तो आपको शेयर होगी और आपका प्रैक्टिकल भी होगा, लेकिन एज अ रीडर, एज अ टीचर आपको रीडर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट के जो फर्स्ट पार्ट है, जो भी बाकी फोर्थ ओरिएंटेशन है, लेकिन जो फर्स्ट ओरिएंटेशन ओपनिंग था वो मेरे पास था और मैंने रीडिंग के ऊपर मेरे जो भी फोकस है या फिर जो मैंने समझा है रीडिंग करके, जो मैंने समझा है वो मैंने आपके सामने रखा है। सो आई होप कि आपने वो प्रॉपर तरीके से सुना है और आप वो समझ पाएंगे कि क्या है रीडिंग और क्या नहीं है। सो ये मुझे आपके सामने शेयर करना था। आई होप शिंदे सर मैंने प्रॉपर तरीके से मेरे जो थिंकिंग है वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। या थैंक यू सर। कोई क्वेश्चंस है या फिर कमेंट्स है तो हम लेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट एंड एनी कमेंट्स? यस यस Thank you, तरुणा। sir. I think it was Yeah. very good, informative session, and after a Yeah. long time, we got something to learn. आफ्टर लॉन्ग टाइम थैंक यू सो मच टू शिंदे सर कि उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं Yes. आपके साथ डिस्कस करूं और कुछ बातें शेयर करूं। यस यस थैंक यू Nick, सर के रीडिंग की टाइप्स और टेक्निक्स बताने के लिए। हम इसको जरूर फॉलो करेंगे और अपने स्टूडेंट्स को भी बताएंगे। यस यस वेरी गुड वेरी गुड। hello. यस सर। Good afternoon, Principal Sir. Anita here. या यस मैम। How are you, sir? फाइन फाइन मैम। एंड यू? Okay, I'm fine. So I'm absolutely okay. Shinde sir and Principal Sir, I feel that 1 hour is too less, sir, to hear to you. I mean, to hear you speak, 1 hour is too less. I mean, it just passed away as if it was a fraction of a second. I mean, शुरू हो गया और खत्म हो गया ऐसा लग रहा है. But yes, it was, as Madhulika said, very informative. And after a long time, we got to hear wonderful words coming from you. And it started off with a very beautiful day, that is today, Datta Jayanti. So thank you, sir. Thank you very much. Thank you ma'am. Thank you. And you are really lucky because this is the first time when Sir has given a first session on reading and reflecting on the text. So your batch is so lucky. So thank you, sir. Thanks a lot from all of us. Our batch has always been lucky because we were the longest batch in the first year, Yeah, Right, yeah. right. shortest batch in the second year, and we have got such lovely opportunities in these 2 years, which are very difficult to explain also. Right. Yeah, definitely. Fully agreed. Yeah. एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली परसों डे बिफोर यस्टरडे अभिनव कॉलेज, जो अंबेगांव कात्रज पुणे में है, अभिनव कॉलेज, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो उन्होंने 208 के लिए मुझे एज ए एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन मुझे इनवाइट किया था। तो वहां पे उन स्टूडेंट को मैंने बताया था, तो शिंदे सर ने बोला कि आप उनके लिए लेते हैं लेक्चर, व्हाई नॉट, तो हमारे स्टूडेंट के लिए भी होना चाहिए। और उन्होंने मुझे फोर्स किया कि यस सर आपको ही 208 लेना है। तो मैंने कहा कि यस सर डेफिनेटली। और हमारा भी ये शेड्यूल था, जिस तरह से उस कॉलेज का चल रहा है उस तरह से हमारा भी सिमिलर पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर है, तो सेम ही पीरियड में ये चल रहा था। तो मैंने कहा कि यस सर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं पहला सेशन लूँ तो। सो थैंक यू सो मच शिंदे सर। Thank you, sir. You're most welcome. Yeah, Taruna, please go ahead. Yes, sir. Thank you, sir. So for the vote of thanks, first, I would like to thank Hedkar sir for giving us his, some valuable time from his busy schedule and guiding us.
Then I would like to thank Sanjay sir for making this program successful and organizing everything and managing everything. In the end, I would like to thank all my friends and batchmates for attending this program and gaining some beautiful insights from it. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir.